পাঞ্জাবাৰীৰ পুৰবী ডেইৰীৰ সন্মুখত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হৈছে হাজোৰ শাহ আলম তালুকদাৰ। হাজোৰ দামপুৰৰ বাণীপুৰত ঘৰ শাহ আলমৰ কুখ্যাত অপৰাধীটোৰ দামপুৰৰ ঘৰত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে নিমাওমাও পৰিৱেশে। হত্যাকাৰী শাহ আলমক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে হাজোৰ দামপুৰৰ ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে পিতৃ, মাতৃ আৰু 2 ভগ্নীসহ ভাতৃ। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰখা নাছিল শাহ আলম তালুকদাৰ ওৰফে জিতু আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যই। জিতু বুলি জানে সকলেও। তেখেতক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰা হৈছে এটা হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত। সেই কথাটো আপোনালোকে গম পাইছেনে? সেইটো কথা আমি গম পোৱা নাছিলোঁ। পিছত সেইদিনা পুলিচে আহোঁতে গম পালোঁ যে কিবা এটা কেছত জিতু বিচাৰিছে। কি কেছ সেই কথাটো কিন্তু গম পোৱা নাছিলোঁ। কিমান গাড়ী আছিল তাত? কিমানখন গাড়ী আছিল? তেওঁৰ এতিয়া আমি জানো 2খনেই গাড়ী, এখন ৰয়েল এনফিল্ড আৰু এখন ইকো। এই কেতিয়াবা ৰয়েল এনফিল্ড চলায়? চলায়, ঘৰতে থাকে গাড়ীখন চলাই দেখোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা অহা যোৱা কৰে মাজে মাজে? গুৱাহাটীৰ পৰা অহা যোৱা কৰে। গুৱাহাটীত স্কুল থকা বুলিও কৈছে। দেখিছেনে? স্কুল আমি দেখা নাই চাগে, এনেই শুনিছোঁ স্কুল আছে বুলি। যিটো কেনেদৰে জানা মানে ধৰ ইয়াতে চুপাৰে একে হেৰি আৰু এনেকৈ আহে থাকে এনেকৈ দেখা পাওঁ। বাকী বিশেষ এনে একো ৰিলেশ্যন নহয় আমাৰ। গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কেনেকুৱা তাৰ সম্পৰ্ক? গাঁৱৰ মানুহৰ লগতো বিশেষ এনে সম্পৰ্ক নাই। সিহঁতৰ ধৰ ঘৰৰ মানুহৰ সেনেকুৱা সম্পৰ্ক নাই। গতিকে সেনে এটা বিশেষ হেৰি গম নাপাওঁ আৰু। সি ইয়াতে আছিল নে গুৱাহাটীত আছিল? গুৱাহাটীত মানে ইয়াতো থাকে, কিবা গুৱাহাটীতো থকা বুলি গম পাওঁ। কিবা স্কুল আছে বোলে, স্কুলত কাম কৰা নাই গম পাওঁ। আহি থাকে আৰু মাজে মাজে দেখা পাওঁ। কাষৰ মানুহৰ লগত মাতবোল নকৰে নেকি? কাষৰ মানুহ মানে সেনেকুৱা মাতবোল নকৰে। বাকী এনে আৰু ধৰ আমি যেনেকৈ এতিয়া কাষৰ আছে নাই দেখা পালে মাত দিলা, সেইটোৱে আৰু। বেলেগ বিশেষ সেনেকুৱা সম্পৰ্ক নাই। শাহ আলম তালুক বুলি নাজানো, এনে জিতু বুলি মাতা বুলি জানো আৰু দেখা পাওঁ, মাজে মাজে আহে। এইটোৱে ঘৰ তাৰ? এইটোৱে ঘৰ। এনে কথা চথা পাতে নাই আপোনালোক? মই এনেই আহিলে লগ পাওঁ, মাত দেই এনে। বাকী কি কৰে আৰু সেইটো মানে গম নাপাওঁ না। এতিয়া মানে ডকাইতৰ কেছত তাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে বা সি এৰেষ্ট হৈছে, এইবিলাক আকৌ গম নাপাওঁ। তাৰ এখন স্কুল থকা বুলি স্কুল থকা বুলি গম পাওঁ আৰু গুৱাহাটীত। ছজনীয়া গেঙে সংঘটিত কৰিছিল ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ড। ছজনীয়া গেঙৰ 5জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড শাহ আলম তালুকদাৰৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো। শাহ আলম তালুকদাৰে গুলীয়াইছিল ৰঞ্জিত বৰাক। শাহ আলমৰ লগত বাইকত আছিল সুজল আলী। ধৃত সুজল আলীৰ ঘৰ 7 গাঁৱৰ সূৰ্যনগৰত। ধৃত জয়দেৱ মহন্ত, জিতুমণি বৰ্মন, হৰেণ পাটগিৰি। কিন্তু এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই 6 নম্বৰ অভিযুক্তক। 6 নম্বৰ অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে। তদন্তৰ খাতিৰত প্ৰকাশ কৰা নাই 6 নম্বৰ অভিযুক্তৰ পৰিচয়। ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত হৈছিল 2খন বাইক। ইতিমধ্যে এই বাইক 2খন জব্দ কৰা হৈছে। এখন বাইক শাহ আলমৰ হাজোৰ বাইকৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে। আনহাতে এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই গুলীচালনা কৰা পিষ্টলটো। 9mm পিষ্টলেৰে গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ৰঞ্জিত বৰাক। ৰঞ্জিত বৰাক হত্যা কৰি লুটিছিল 2,45,000 টকা। 1,05,000 টকা লৈছিল সজল আলীয়ে। মূল অভিযুক্ত শাহ আলমে লৈছিল 1 লাখ টকা। জিতুমণি বৰ্মনে লৈছিল 40,000 টকা। কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ আৰু নলবাৰী আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত এই সফলতা লাভ কৰা হৈছে। ইফালে মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীত সংঘটিত হৈছে এটা জঘন্য ধৰ্ষণৰ ঘটনা। এগৰাকী 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ভাড়াঘৰৰ মালিকে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ। অভিযুক্ত ঘৰৰ মালিক দিগন্ত দাস। দিগন্ত দাসৰ বিৰুদ্ধে বিৰুবাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে। মাতৃ আৰু ভাতৃৰ সৈতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল ছাত্ৰীগৰাকী। এই মুহূৰ্তৰ আমি জনাইছো এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে। ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত 9ম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি অভিযুক্ত দিগন্ত দাস বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে।
আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিলে সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব এই সমগ্ৰ ঘটনা অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজত সোমাই পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছে যে ঘৰত তেওঁলোক নাছিল ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত নৱমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছে ঘৰৰ মালিক দিগন্ত দাসে কিন্তু এই অভিযোগ কিমান সত্য সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কাৰণ বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে দিগন্ত দাসক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিলে এই ৰহস্য ভেদ কৰিব আৰক্ষীয়ে মিড ডে 18 পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড সমুখত ত্ৰিপুৰাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই মুহূৰ্তত ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আমি আগবঢ়াম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ गैस का सिलेंडर पहुंचा था क्या कोरोना का टीका कभी भी अलग अलग रोग आए टीका लगाने की प्रक्रिया हुई थी क्या मुझे बताओ आप सबका कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है
जिसका लगा है वो हाथ ऊपर करे जरा। किसी को 5 पैसा भी देना पड़ा है क्या? अरे कोरोना का टीका लगाकर मोदी जी ने पूरे त्रिपुरा को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है भाइयों, सुरक्षित करने का। कई लाख लोगों को घर देने का काम किया, 4 लाख परिवारों को घर में पीने का पानी दिया। आज ये हमारे लाल भाई कम्युनिस्ट भाई निकले हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने आपके 27 साल के शासन में कितनी माताओं को घर में पीने का पानी दिया? सिर्फ 24,000। कितने? जोर से बोलो कितने? और मोदी जी ने 5 साल में 4 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम किया। मित्रों, ये परिवर्तन है, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। आप मुझे बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी को आप जिताना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, जिताना चाहते हो? एक कम्युनिस्ट, एक कांग्रेस और एक मोथा वाले तीनों मिले हुए हैं, तीनों मिले हुए हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो सार्वजनिक रूप से मिले हुए हैं, मगर मोथा वाले टेबल के नीचे मिले हुए, पीछे पीछे से काम। मुझे समझ में नहीं आता क्या हो गया है मोथा के नेताओं को। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक आदिवासियों को इतना न्याय किया, वो कम्युनिस्ट पार्टी को जिताने के लिए मोथा ने अलग मोर्चा खोला है। मैं आज कहने आया हूं त्रिपुरा की जनता को, झांसे में मत रहिएगा। वोट कम्युनिस्टों को दिया, कांग्रेस को दिया या अनानस वाले मोथा को दिया, सरकार कम्युनिस्ट की बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो केवल और केवल आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है, कमल के निशान पर। माताओं, भाइयों, बहनों, कम्युनिस्टों ने अंधकार दिया था, हमने आपको अधिकार देने का काम किया है। 400 लोगों की हत्या कर हिंसा का तांडव किया था। हमने ब्रू और रियांग समझौता कर यहां पर अनेक उग्रवादी संगठनों से समझौता कर विनाश की जगह विकास दिया है। कम्युनिस्ट हमेशा विवाद शुरू करते थे, हमने विवाद की जगह विश्वास देने का काम किया है, त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, यही त्रिपुरा है जो कभी उग्रवाद, बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार और आदिवासियों के अन्याय से जाना जाता था। 5 साल में हमारे 2 मुख्यमंत्री विप्लव जी और डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में अब यहां पर रोड बन रहे हैं, पुलिया बन रही है, पानी आ रहा है, सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित हो रहा है, इंडस्ट्री आ रही है, ऑर्गेनिक खेती बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है, मेरे आदिवासी माताओं, भाइयों, बहनों को अधिकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, पहले आपको रेशन कार्ड लेना है तो कार्ड होल्डरों के पास जाना पड़ता था, कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर के पास जाना पड़ता था। ठेका लेना है, कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर के पास जाना पड़ता था। आपका सस्ता अनाज लेना है, कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर के पास जाना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी ने एक कैडर का राज समाप्त कर
संविधान का राज बनाने का प्रयास किया है और इसको जमीन पर उतारा है। टोलाबाजी की परंपरा को हमने समाप्त कर दिया है। डर के माहौल को हमने समाप्त कर दिया है। और मोदी जी ने जो हीरा का मंत्र दिया था, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरपोर्ट, ये हीरा के मंत्र पर त्रिपुरा को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कम्युनिस्टों के और कांग्रेस के 50 साल के शासन में 4,600 स्वसहाय जूथ थे। 4,600 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 4,600 से बढ़ाकर 42,000 स्वसहाय जूथ महिलाओं के बनाए हैं। और इन्होंने 8 करोड़ रुपया फाइनेंस किया था माताओं बहनों को। सिर्फ 8 करोड़ रुपया 50 साल में 8 करोड़ से बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 562 करोड़ रुपया 562 करोड़ रुपीस फाइनेंस किया है। मित्रों, मैं आज बताने आया, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 50% की गिरावट आई है। सभी सरकारी नौकरियों में 33% हमारी माताओं बहनों को रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है। स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो 50 साल में 73 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने थे। 73 से बढ़ाकर हमने 118 करे और 238 नई एम्बुलेंस जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सिर्फ 24,000 घरों में पानी पहुंचाया था, हमने 4 लाख घरों में पहुंचाया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति स्थापित करने का मोदी जी ने बहुत सफल प्रयास किया। पूरा नॉर्थ ईस्ट पहले उग्रवादी संगठनों के बम धमाकों से ध्रुजता था, आज उसकी जगह रेलवे और एरोप्लेन की आवाज आ रही है। त्रिपुरा ने में भी एनएलएफटी के साथ समझौता किया, 50 से ज्यादा जनसमूहों को बसाने का काम किया। ब्रू के साथ, रियांग के साथ समझौता कर 40,000 आदिवासी भाइयों बहनों को परमानेंट घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कम्युनिस्टों की हिंसा, जिसमें सिर्फ 2 साल में 450 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, इनको संपूर्ण समाप्त कर दिया। और यहाँ पर मेरे आदिवासी भाई बहन आए हैं। एक कांग्रेस पार्टी, एक कम्युनिस्ट कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं करते थे। 75 साल में कभी भी देश का राष्ट्रपति आदिवासी नहीं बना।
शांति की स्थापना करने का काम किया है और अगले 5 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा को सबसे समृद्ध राज्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं, मोथा बरगराकर गलत रास्ता दिखाकर त्रिपुरा मोथा वाले आदिवासी भाइयों बहनों पर फिर से एक बार कम्युनिस्टों का शासन थोपना चाहते हैं। मैं आप लोगों को कहने आया हूं, आपको मुफ्त अनाज 2.5 साल तक मोदी जी ने दिया है, घर में गैस का सिलेंडर मोदी जी ने भेजा है, शौचालय मोदी जी ने भेजा है, घर में बिजली मोदी जी ने दी है, 2.5 लाख लोगों को घर का प्रावधान मोदी जी ने करा है और हर किसान को 6,000 रुपया भी मोदी जी ने दिया है। आप मोदी जी पर भरोसा रखिए। मैं आपको बताता हूं, अगले 5 साल में सबसे ज्यादा विकास अगर किसी का होगा तो मेरे त्रिपुरा के आदिवासी भाइयों बहनों का विकास होगा। माताओं भाइयों बहनों, कम्युनिस्ट पार्टी सीधा भारतीय जनता पार्टी से लड़कर जीत नहीं सकती। इन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया है, मोथा के साथ गुप्त समझौता किया है और मोथा भाजपा के वोट बिगाड़कर कम्युनिस्टों को जिताना चाहती। मोथा को वोट देने का मतलब है कम्युनिस्टों को वोट, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कम्युनिस्टों को वोट और कम्युनिस्टों को वोट का मतलब है फिर हिंसा का शासन यहां पर त्रिपुरा में प्रस्तापित करना। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, आप हिंसा का शासन चाहते हैं क्या? जोर से बोले, चाहते हैं क्या? तो एक निर्णय करिए, अपने अपने गांव में जाकर जागरूकता फैलाइए। कांग्रेस पार्टी लड़ ही नहीं रही है, एक कम्युनिस्ट है, मोथा लड़ ही नहीं रही है, आगे पीछे कम्युनिस्ट है, मोथा को वोट, कांग्रेस को वोट मतलब कम्युनिस्टों को वोट और भारतीय जनता पार्टी को वोट मतलब मोदी जी को वोट, विकास को वोट, समृद्ध त्रिपुरा को। माताओं भाइयों बहनों, मैं आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया। আৰু মিছন ত্ৰিপুৰালৈ ত্ৰিপুৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল মিড ডে 18 পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। স্ট্রং নহয় মাইথান স্ট্রং, মাইথান স্টিল নির্মাণৰ মানদণ্ড।